وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کیا تو کاش جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، جنرل باجوہ، جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف، پرسوں میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا، کل کہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ ججز کو ججز کی اوقات دکھائی گئی، تو کاش وہ ججز کی اوقات ان کو دکھاتے جو ججز کو حکم دیتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں۔ تو آج یہ مئی فرما رہی ہے کہ اس ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس ادارے کے اندر جو ہے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ول آف پیپل یعنی عوام کے انٹرسٹ کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر آپ کا احتساب کا نظام اتنا مضبوط ہوتا تو کاش جنرل جو یحییٰ تھا اس کا احتساب ہوتا، جنرل ایوب کا احتساب ہوتا، جنرل مشرف کا احتساب ہوتا، جنرل ضیاء کا احتساب ہوتا، جنرل باجوہ کا احتساب ہوتا، اور جاتے جاتے یہ سب اگر یہ احتساب ہوتا تو یہ سب آج نہ ہوتا۔ جزیرے، مال، زمینیں، عین توڑنا، عدت کیس بنانا، عورتوں کو جیلوں میں ڈالنا، ججوں کے کمروں میں کیمرے لگانا، آدھے درجن وزیر اعظم قید، ایک کو پھانسی، NRO، گندی ویڈیو۔ آپ اگر ملک کے مفاد کے لیے ہوتے تو لوگ آپ کو گالیاں نہ دے رہے ہوتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تو پھر جب آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ جو ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا یہ پبلک انٹرسٹ تھا کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو گربان سے جو پکڑ کر لے کر جا رہے تھے 9 مئی کو، تو یہ بتایا جائے کہ کیا وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے تھا؟ پبلک کہتی ہے کہ آپ اس طرح ایک سابق وزیر اعظم کو اٹھاؤ، کیا یہ پبلک انٹرسٹ تھا کہ 8 فروری کو جس کو پبلک نے سپورٹ کیا اور پبلک کی توہین کی گئی اور ان کا الیکشن جو ہے وہ چورایا گیا؟ یہ وہ مائی ہے جس کو میدان میں اتارا گیا اور وہ آئی، اور اس کے بعد اس کا جو میڈیا کے اوپر حشر ہوا وہ آپ کے سامنے آئے۔ تو اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو اغوا کرنا، مارنا، پیٹنا، مسنگ پرسن، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کیا یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ چیزیں جو یہ بتا رہی تھی؟ تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج 9 مئی کا ایک کیس لگا ہوا تھا، بڑا اہم کیس تھا۔ اس کیس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی جو 2 ماہ پہلے اسلام آباد کی ATC عدالت جو ہے جو تھانہ رمنا پر حملے کا جلاؤ گراؤ کا مقدمہ میں PTI کارکن اور ایک رہنما جو لطیف چترالی تھا ان کو 26 سال سزا سنائی گئی تھی۔ تو اس سزا کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج جو ٹرائل ہوا تو اس ٹرائل کے خلاف جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہوا تھا تو اس کے اوپر آج جو ہے وہ اپیل تھی، تو جج نے 4 جو کارکن تھے ان کو باعزت بری کر دیا۔ PTI کے 4 ورکروں کی 9 مئی کے مقدمات میں ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے سزاؤں کے خلاف اپیل میں روستم پر پراسیکیوشن کے دلائل کی باری آئی تو سب سے پہلے تو پراسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں دلائل دینے کے لیے وقت دیا جائے، جس پر جسٹس اعظم خان نے کہا کہ 4 لوگوں پر جو الزامات ہیں لگائے گئے ہیں ہمیں کچھ ثبوت بتا دیں۔ ان ورکروں نے پولیس اسٹیشن پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ پراسیکیوٹر اس کا کوئی ثبوت دیں، کوئی ویڈیو دکھائیں۔ جسٹس خادم سمرو جو دوسرا بینچ کا رکن تھا اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ان ورکروں نے تھانے کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، وہ ثبوت دکھائیں۔ تو پراسیکیوٹر سر ان لوگوں نے موٹر سائیکل جلائے، جو موٹر سائیکل جج صاحب نے کہا کہ جلائے گئے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہے، کس کی تھی، کس کے نام پر رجسٹر تھے؟ سر وہاں پر کھڑی موٹر سائیکل جلائی گئی، یہ پراسیکیوٹر کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سر ہم نے ان 4 ورکروں کے کیس میں کچھ تصویریں بطور ثبوت جو ہے وہ پیش کر دیں، یہ پراسیکیوٹر جو ہے وہ کہہ رہا تھا جج کو، تو آپ دیکھ لیے۔ پراسیکیوٹر نے کہا تو پتہ چلا وہ ایک ڈنڈا تھا جو اسلحہ، یہ دونوں چیزیں ورکروں کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ آپ نے کہا کہ ان سے ڈنڈا برآمد ہوا ہے، ان تصویر میں سے ایسا کچھ نہیں، جسٹس خادم سمرو نے کہا۔ آج CCTV فوٹیج کی بات آئی تو پراسیکیوٹر صاحب خاموش نظر آئے۔ عدالت نے 4 ورکروں کو باعزت بری کر دیا اور عمران خان نے ہمیشہ سے ایک مطالبہ کیا کہ اگر آپ نے ہمارے مقدمات چلانے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے CCTV فوٹیج کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے لائیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ٹرائل کیا جائے۔ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں سزا دی جائے، اگر ہم گناہ گار نہیں ہیں تو اس ڈرامے کو بند کر دیا جائے۔
इसी के ऊपर बतौर सबूत एक और वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा जो आज तक इस बात का इंकशाफ नहीं हुआ। ये इंकशाफ पहली दफा हुआ जब इमरान खान को 9 मई को सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। तो 8 मई यानी सुबह 9 थी, तो उस रात जो है इमरान खान के कुछ दोस्तों को ये पैगाम दिया गया था कि आप इमरान खान के पास जाएं और इमरान खान को कहें कि सुबह हम आपको गिरफ्तार कर लें, अभी आपके पास टाइम है, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जहाज जो है वो तैयार खड़ा हुआ है, आप फैसला कर लें, आपने जिस मुल्क जाना है आप चले जाएं। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था, उसने कहा था आपने जो कुछ करना है आप कर लें। तो बात यह है कि वो साजिश कहाँ चली गई, आपने पहले बता दिया था कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं हुई। तो इसलिए इमरान खान साहब कहता है कि आप वो चीजें हमारे पास ले आएं और हमें दिखाएं कि किस तरह ये जो तमाम चीजें हुई हैं तो वो हमारे सामने रखी जाएं और उसके बाद हम अगर इसके अंदर कसूरवार हैं तो हम जो है वो सजा कबूल करेंगे। तो थाना रमना की सीसीटीवी फुटेज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिलचस्प तस्करा हुआ कि जस्टिस आजम खान ने पूछा कि थाने में कैमरे लगे होते हैं, क्या सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि सीसीटीवी कैमरे पीटीआई के हमलावर ने तोड़ दिए, अदालत में कहके लगे। और जस्टिस आजम खान ने कहा तो क्या रिकॉर्ड भी खत्म हो गया है? अगर उन्होंने जो है सीसीटीवी कैमरे की फोटो ये कैमरे तोड़ दिया है तो क्या वो रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो गया है? तो पीटीआई के जिन कारकुनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया है उनमें से दो से कोई बरामदगी नहीं थी। एक से पीटीआई का झंडा और उसका डंडा बरामदगी लिखी गई थी, जबकि चौथे से पीटीआई की टोपी बरामद की गई थी। चारों में से किसी मुलजिम से असला बरामद नहीं किया गया था। किसी पर कोई मखसूस जुर्म करने का इल्जाम नहीं था। पुलिस का कोई अफसर या एहलकार जख्मी नहीं, किसी की LMR फिर भी नहीं, फिर भी इक़दाम कत्ल की दफात में सजाएं सुनाई गई। ये अजीम कारनामा इस्लामाबाद की ATC अदालत के जज ने सर अंजाम दिया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माज एक बाकायदा समात में ही उड़ा कर रख दिया। ये वो फैसले हैं जिनके मुतल्लिक इमरान खान कहता था कि जब भी ये केस आगे बड़ी अदालतों के अंदर जाएंगे तो ये एक समात के ऊपर भी नहीं टिक पाएंगे। तो ATC अदालत से दी गई हैरान कुन सजा का हाल देखा क्या हुआ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पुलिस स्टेशन पर हमला और अंधाधुंध फायरिंग की गई, रियासत के इदारे पर हमला किया गया, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी? अपीलें मुस्तरद की जाएं। जस्टिस खादिम सुमरू पहले मुल्जमान के मौके पर मौजूदगी तो साबित करें, फिर आगे बात होगी। किससे बरामदगी नहीं है, कोई जख्मी नहीं है, ना MLC नहीं है, सिर्फ शनाख्त परेड की बुनियाद पर इनको हम सजाएं सुना दें। कोई सबूत तो लेकर आए, कुछ तो लेकर आए, फिर हम कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले 4 पीटीआई कारकुनों को बरी कर दिया, क्योंकि कोई सबूत प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं था। अगर वो सबूत मौजूद होते तो आज प्रोसिक्यूशन वो साबित करते कि भाई ये सबूत हैं, ये वो थे। सजा किस बात के ऊपर दी गई? एक शख्स जो है वो तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ था और वो झंडा उतारता है, उसका डंडा था, ये कहा गया कि हमने ये डंडा बरामद किया। दूसरे शख्स को ये सजा 10 साल की सजा सुनाई गई कि उसने तहरीक इंसाफ की जो टोपी थी, कैप थी, वो पहनी हुई थी, उसके ऊपर 10 साल सजा सुनाई गई। इससे पहले आज मैं आपको ये एक और जो आज इंकशाफ हुआ वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर जो हैं उन्होंने आज हामिद मीर के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के ऊपर बैठकर ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को 9 मई से गिरफ्तार करने से पहले 8 मई को रात यानी इमरान खान के दोस्तों के जरिए उनको पैगाम पहुंचाया गया। मीर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए थे उस रात भी उनके करीबी दोस्त भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। ये जहाज भी खड़ा हुआ है लाहौर एयरपोर्ट पर और आपने दुनिया के जिस कोने में जाना है आप जाएं। और वो ऑफर उनको उस वक्त मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी से पहले की गई और उनको ये पता था कि आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। और उसके बाद भी आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी से पहले भी कई दफा उनको ये ऑफर्स हुई कि आप मुल्क से बाहर चले 8 फरवरी के बाद भी जब हुकूमत बन रही थी और फिर 3-4 महीनों में भी के बाद भी जब हुकूमत बन रही थी इन 3-4 महीनों में भी आप जानते हैं कि बड़े आला पैमाने पे डायलॉग्स हुए, लोग गए जेल के अंदर गए, जेल से बाहर आए
और उस वक्त भी उनको ऑफर तो वो इमरान खान है, ना वो भागा, 26 ना वो बीमार हुआ, वो आज भी डट कर तो वो जेल इमरान में खान खड़ा है, है। ना वो ये भागा, 75 साल तारीख ना वो में बीमार पहली हुआ, दफा है कि वो कोई आज सियासी भी लीडर डट कर जेल जेल में में बैठकर खड़ा अपने है। मौक़िफ़ ये पर 2 साल से तारीख ज़ायद में अरसा हो गया पहली दफा क्या है बंद कि की कोई सोबतें सियासी बर्दाश्त कर लीडर रहा है, उनकी जेल में सेहत को भी बैठकर खतरात अपने है, उनका मौक़िफ़ वजन भी पर गिर रहा 2 है, साल से उनको ज़ायद जेल अरसा में हो उनके गया, साथ जो सलूक हो क़याद रहा है वो बंद की जंगी सोबतें कैदियों के साथ बर्दाश्त नहीं कर होता, रहा है, लेकिन वो उनकी अपने सेहत को भी मौक़िफ़ पर खतरात है, डट उनका कर वजन भी गिर खड़ा रहा है। है, ऐसी उनको मिसाल जेल में पाकिस्तान उनके की साथ जो सियासत में सलूक हो या रहा है वो जनूबी एशिया जंगी की सियासत कैदियों में के अगर साथ कोई नहीं एक होता, भी है लेकिन वो तो मुझे अपने बता दे, मौक़िफ़ वरना पर लोग लेट डट जाते कर हैं, खड़ा है। एनआरओ ले जाते हैं, ऐसी मिसाल 70 पाकिस्तान की संदूक भर सियासत के में सऊदी या एयरलाइन जनूबी का एशिया की जहाज आता है, सियासत में रातों अगर रात कोई निकल एक जाते भी हैं, है तो 10-10 मुझे साल बता के दे, मुआहदे वरना करके लोग चले लेट जाते जाते हैं, हैं। एनआरओ ले जाते हैं, ये थी वो 70 वीडियो संदूक भर जो के आज सऊदी तक एयरलाइन का जहाज किसी आता है, रातों रात रहनुमा ने निकल जाते ये हैं, इंकशाफ नहीं किया 10-10 था। साल के आज मुआहदे जियो करके न्यूज़ चले के जाते हैं। ऊपर जो आमिर खान डोगर आए, मुल्तान से तहरीक इंसाफ के एमएनए आए और चीफ वेब भी आए, उन्होंने बरमला आज मीडिया के ऊपर कह दिया कि हम कैसे ना कहें कि 9 मई हमारे खिलाफ साजिश थी। 9 मई से पहले इमरान खान को कह दिया था कि ये आप सुबह आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कसूर कोई नहीं था, जुर्म कोई नहीं था, सिर्फ बदमाशी थी, बदमाशी के ऊपर आपको गिरफ्तार कर लेंगे कि आप इस मुल्क के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं, ये आवाज बड़ी जुर्म है, आप ये जुर्म कर रहे हैं। हम आपको वक्त दे रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जहाज जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, आप यहां से उठें और उठकर उस जहाज के ऊपर बैठें। जिस मुल्क में आपको जाने का इरादा है आप जाएं और आप खुशी से वहां पर जिंदगी गुजारें। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं कल 9:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होऊंगा, किसी के अंदर अगर जुर्रत है तो वो आकर मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं वारंट मुझे दिखाए जाएं और वारंट दिखाने के बाद मैं बिल्कुल जो है वो गिरफ्तारी दे दूंगा। उसके बाद वहां पर गए और कोई वारंट नहीं दिखाए गए क्योंकि वो बदमाशी थी। उस बदमाशी के बुनियाद के ऊपर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो पार्टी के साथ हुआ वो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। तो आज ये इंकशाफ हमारे सामने आ चुका है कि इमरान खान के साथ बरमला ज्यादती की गई और मुकदमा साबित करने में आज प्रोसिक्यूटर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई।